So last time we have discussed special functions, modulus, greatest integer, and signum. Yes, as well as rational function. Before going into further special functions, let me discuss with something about domain, range and codomain again. What is domain? Because if the definition is not clear, then you may not able to attempt the question properly. Domain, range and codomain. Yes. If I have a function, f is from say natural numbers to natural number, and fx is equals to x square. In this particular question, if I want to ask for domain, range and codomain, as this is a function, so the complete set A is domain, complete set B is codomain. For range, we can take a help of arrow diagram. Suppose this is your arrow diagram. Here we have natural number 1, 2, 3, 4, infinite natural numbers till infinity. Again 1, 2, 3. So 1 goes to 1, 2 goes to 4, 3 goes to 9, 4 goes to 16. So the elements here in set B, which are associated with some elements in set A, those come under range. Only the associated elements comes under range. So the range would be only square numbers. So can I write x such that x is equals to n square, n belongs to natural number? I can give the set builder form. Also, I can give the roster form 1, 4, 9, 16 likewise. So you can give your answer in either of the way. Okay. Let me take you to the next question again to explain domain, range and codomain. If my function is from like f is like real numbers to real number, fx is equals to 1 upon x. Yes. So this is the example in which function is from R except zeros. That means all real domain is all real values except 0 and codomain is real numbers. So again I need to find domain, codomain and range. So domain is the complete set A. In case of functions, domain is complete set A. I want to know about range. What should be the range over here? What's the function? Fx is equals to 1 by x. This was the function. Fx is equals to 1 by x. Can anyone tell me the range? Yes, this is a rational function. All real numbers except 0. Codomain. Codomain is complete R. Again we can draw a rough arrow diagram, क्योंकि real numbers के case में we won't able to draw real arrow diagram, as the numbers are infinitely, like in above or in downward cases both. So 1 is 0 is going to 1 is going to 1, 2 is going to half, 3 is going to 1 by 3, 1 by 3 is going to 3, 1 by 2 is going to 2.
So that means we are capturing each and every element of, we are capturing each and every element of the set except 0. 0 have no pre-image. Pre-image मतलब उसका एसोसिएशन सेट ए में मिसिंग है, ठीक है, सेट ए में मिसिंग है. सो दैट मीन्स रेंज इज आर एक्सेप्ट 0 as 0 has no association in set A. Is that fine? So this must be range for this particular function. रेंज को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों में है कि रेंज क्या होता है. लेट मी टेक यू टू द सिंपल एग्जांपल. इफ आई हैव दिस एरो डायग्राम, से सेट ए सेट बी, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5. This is a function. This is a function. What's the range? Yes, Vidit. Range, domain. रेंज तो 3 है. कोडोमेन, तीनों बताओ. कोडोमेन तो पूरा सेट भी है, मतलब नेचुरल नंबर्स 1 to 5. This is singleton set 3. This is singleton set 3. And if I now come to the function, a special function, real numbers to real number, fx is equals to say 2. So this is a constant function. This is called constant function because each and every value from domain is going only towards 2. ऐसे ही हो रहा है. Each and every value from set A, this is R here, is going only towards 2. So the range will be singleton set 2. Codomain is complete set R. Domain is complete set R. So this is your constant function. Is that fine? Clear है सबको? Yes, Harish. Is this now clear to you? Yes, ma'am. Clear, ma'am. Okay. Another special function, identity function. Identity function. Special है दोस्तों ये भी. Identity function. F is from R to R. Identity means whatever we are just giving as input, we are getting the same as input. Same as input. 1 1 पर 2 2 पर 3 3 पर 4 4 पर likewise. So this is your identity function. Whatever we are like substituting, we are getting the same answer. So domain, range, codomain, all are real numbers. All are real numbers. Discuss the graph. Discuss the graph. इसका भी ग्राफ देख लेते हैं. इसका भी ग्राफ देखते हैं. इसका ग्राफ, क्योंकि स्पेशल फंक्शंस के लिए तो क्वेश्चन इज लाइक डिस्कस द कांस्टेंट फंक्शन, गिव इट्स डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ड्रॉ द ग्राफ. 3 मार्क का क्वेश्चन. डिस्कस द आइडेंटिटी फंक्शन, गिव इट्स डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ड्रॉ द ग्राफ. सो इसके ग्राफ के लिए, अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन के लिए यू कैन कंसिडर एनी कांस्टेंट. आई एम कंसिडरिंग 2. आप 2 3 -2 -4 कुछ भी लेके इसको कंसिडर कर सकते हैं, राइट? ग्राफ के लिए fx is equals to 2. That means y is equals to 2. fx is nothing but y. So if you want to make a box, solution box, for each and every value of x I am getting 2 only. I am getting 2 only. For 3 I am getting 2. For 4 I am getting 2. So it's a line parallel to x axis. It's a line parallel to x axis. I hope सबको समझ आ रही है ये. y is equals to 2 is a line parallel to x axis. कई बार एग्जाम में MCQ में क्वेश्चन आता है, डिस्कस द नहीं, what should be the behavior of a graph of constant function. The graph of constant function is always a line which is parallel to x axis. Which is parallel to x axis always. So the graph of this function, let fx is equals to y. x है यहाँ पर, y ले लेते हैं fx को. So can draw graph. लाइन आएगा आपका 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 4.
आहन कैमरा ऑन करके रखो क्लास में। सो ग्राफ कैसा दिखेगा आपको? 0 पर 0 आएगा, 1 पर 1, 2 पर 2, लाइक इन दिस वे। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू x। यहाँ पर आपके स्पेशल फंक्शंस ओवर होते हैं। आज हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे टू फाइंड डोमेन एंड रेंज, जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को। ठीक है, ये क्लियर है सबको? नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि पहले ये नहीं कराए थे मैंने, इन पर बात नहीं हुई थी पहले। फ्राइडे को टेस्ट है आप सभी बच्चों का, सेट्स एंड फंक्शंस का, रिलेशन फंक्शंस। Clear? Put a heading. Find domain and range for the following questions. Find domain and range of the following questions. Find domain, range and of following question. बोर्ड पर ध्यान। Yes. Find domain and range. Find domain and range. First, we are starting from rational, then we will move to modulus and then to square root. Okay. Rational में y is equals to, sorry, fx is equals to, fx और y कुछ भी दे सकते हैं, fx is equals to 1 upon x minus 2. Find domain and range, दोनों आपको find करना है इसके अंदर। डोमेन के लिए आपको x चूज करना होता है, रेंज के लिए यू नीड टू पिक y, y को बताना है y कहाँ से आएगा। ठीक है, रैशनल है, whenever the function is like rational you just need to find a value at which the denominator is 0. So at x is equals to 2, denominator is 0, so we can place each and every value of x in this function except 2, because 2 is making this value as not defined. So this for x, domain belongs to all real number except 2. And if I want to find range के लिए first of all you need to take fx as y, and then now you need to convert this function in terms of y. Convert this function in terms of y. Yx minus 2y is equals to 1. How we can convert function in terms of y? By taking x, only x on the right side. So keep this x, yx on the right, left में. X is equals to 1 plus 2y by y. So again this is a rational function. Rational है तो y can take all values except 0. Rational में दोबारा आ जाएगा, simple है. Y belongs to R except 0. So in this way we can find domain and range for rational functions. But only for single factor like linear factor, not for the quadratic one. Quadratic के लिए आपके पास जो question, Can you please explain me last step? this one. Yes. See beta, we want to find a range, so for range we need to keep x on the left side and the rest of the terms in y on the right side.
So again, this is a rational function. For a rational function, a value like for a rational function, y can take all the values except 0. Except 0. Sorry, I forgot to write this. Except 0. Okay. So this is your range. Next one is find. Last time I gave you 2-3 questions for homework. हाँ, खड़े हो जाओ. नहीं दिए थे, दिए थे, मुझे याद है. नहीं दिए ना, मैंने चेक किया था क्लास से पहले। दिए हैं, मुझे याद है मैंने दिए हैं. नाइट में गए, तो कुछ बोल ही नहीं था, करें करें करे हैं. तो 2 क्वेश्चन दिए थे. 2 क्वेश्चन दिए थे. नाम नहीं दिए थे मैम, खड़े हो जाए. नाम खड़े नहीं हो सकता मैं, पैर नहीं है तुम्हारे पास. नाम नहीं है आज, पैर आजकल नहीं है. क्वेश्चन बोलो आप आदित्य. fx is equal to 3 minus x upon 3 plus ये तो क्लास में करा दिया था. नहीं सर. नाम नहीं दिया था, कोई होमवर्क आप देख लो. वो आप नोट कहाँ करते हो. नाम शायद का सारा नोट किया है. हाँ बोलो. fx is equal to 3 minus x upon x plus x plus 1. So domain is clearly r except minus 1. Domain is r except minus 1. Range के लिए let y is equals to fx, and now you need to write x in terms of y. So cross multiply, take the terms of x on the left side and terms of y on right. So we can take y common, x common from the left. Again we are getting a rational function in terms of y now. So y belongs to all real number except 1. Simple. समझ आया. मैम हाँ जी. उधर yx plus x नहीं होएगा? Yes, plus x. Thank you बेटा. क्लियर है सबको. नेक्स्ट वन इज, कौन सा क्वेश्चन था बताएं. fx is equal to 4 plus x fx is equals to 4 plus x. upon 5 minus x. जल्दी से कीजिए. फाइंड डोमेन एंड रेंज एवरीवन. जल्दी से बताएं डोमेन एंड रेंज. X will belong to real minus 2 का है यार, बाद में फिर सब आप कर दीजिए. हाँ ठीक. Short यार. पहले दोनों कर लें डोमेन रेंज, फिर बात डिस्कस करेंगे. ठीक है. नाम तो नहीं, वही बात Y नहीं कहाँ है? हुई. वही वापस नहीं आ गया उसमें। बाय चांस. तो वही फिर- y कहाँ है? नहीं बाय चांस कैसे हुआ? पिछले वाले में भी यही तो हुआ था. नहीं, वहाँ पे सब में नहीं बात होता. वहाँ पे हो सब गया में था। नहीं होता. उसमें भी x belongs to r minus x minus 1.
हाँ भाई, आपका इससे क्यों आ रहा है बताओ ज़रा, गलत कर रहे हो आप। कर क्यों नहीं रहे? अच्छा करके लाए हो। ये इसका क्या आंसर है? यस, आपका शायद गलत है, एक बार देख लेते हैं। यस, डोमेन क्या है? आई एम इंटरेस्टेड इन रेंज। रेंज बता दूं? बता दे। y belongs to r minus except 0. अच्छा, आप देखिए सबके अलग अलग आंसर है यहाँ पे। आर एक्सेप्ट 0। एक मिनट सर, एक मिनट, ड्रेस नहीं मारना। आपका है आर एक्सेप्ट -5, ये 5। 5 आपका क्या है? x हो गए तो एक मिनट, अरे हो सकता है, सेम भी हो सकता है। y एक्सेप्ट -1, r एक्सेप्ट -1। यस, आपका क्या है? एक्सेप्ट 1। देखो कितने बच्चे, सबके अलग आंसर। अच्छा ठीक है, हाँ जी मेरा भी -1। ठीक है। आपका क्या है हरीश? तेरा तो सब आ गया। यस यस, रेंज रेंज। दोनों निकालना था ना। अच्छा Except means y can take values r except which value? Like in this way, domain is taking r except 5 because 5 is making denominator as 0. Okay, so for range we need to convert x in terms of y. We need to convert x in terms of y. Take terms of x together on the left or either on right. So 5y -4 same है, either on left or on right एक ही बात है। 5y, it's this one is correct. तो मेरा सही है। 5y -4 upon 1 plus y. So again we are getting a rational function, and that in this particular function y can take all real values except -1. So the final answer should be this. अच्छा तो यूं नहीं भागना होता, थोड़ा तरीके से लिखना होता है। ब्रैकेट ओपन करने में से और मुझे ये नहीं समझ आया ये हुआ क्या। ये क्या हुआ, ये क्या है? ये थोड़ा साफ सुथरे से लिख पहले। y मल्टीप्लाई करके y कॉमन ले लिया। हमें x इज इक्वल टू लिखना होता है, y इज इक्वल टू नहीं लिखना होता। तुम तो वापस मैं सोच रहा था यही मैंने किया क्या है। मैंने भी वही करा। x इज इक्वल टू लिखना होता है, तब y पता चलता है। क्लियर? क्या -2। Next question. Now we are coming towards modulus. अभी तक रैशनल्स हमने करा है, रैशनल्स का डोमेन रेंज। अब मॉडुलस विदाउट ग्राफ। फाइंड डोमेन एंड रेंज। बोर्ड पर ध्यान सबका, मत रखो, पूछ लो, मतलब पूछ लो, छोड़ दिया। See, for modulus function domain can be any real number all time, all real numbers. न्यूमरेटर में कोई हार्म नहीं है। डोमेन इज रियल नंबर। बोर्ड पर ध्यान 1 मिनट के लिए सबका। For range we'll start with inequalities. How? Value of mod x plus 1 can be more than or equal to 0 but less than infinity. ये तो ऑब्वियस है। क्या? For modulus function, in case of modulus function for range we start with the modulus part. ठीक है, so modulus is this one, so the value of this mod should always between 0 like from 0 till infinity. Positive real numbers we can include 0 because 0 can be a
this can be 0 at -1, right? But I need to convert this as fx, so I need to add 2. 2 ऐड करेंगे सब तरफ, ये आ गया 2 ऐड करा है. 2 क्यों ऐड करा है? बिकॉज मुझे ये पूरा यहाँ पर फॉर्म करना है. इन्फिनिटी प्लस 2 इज इन्फिनिटी. इन्फिनिटी में 2 और ऐड करेंगे, इन्फिनिटी रहेगा. इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट से इन्फिनिटी ही रहता है. इन्फिनिटी में आने जाने से कोई फर्क पड़ता नहीं लोगों के. नहीं बट फिर तो मॉड्यूलस एक्स होंगे इन्फिनिटी है तो मैं तो नहीं, मतलब फर्क नहीं पड़ता. नहीं, मैं ये कह रहा था कि स्कूल में तो दिखाते हैं टू क्या? इन्फिनिटी इन्फिनिटी स्क्वायर. क्या? हाँ एलए में भी लिखवाया, स्कूल में भी लिखवाते हैं. भाई तो अबे क्या, फिर उसके बाद दोबारा इन्फिनिटी कर देते होंगे उसको. नहीं हाँ, ऐसे ही रखते हैं. एड्रेस तुमने पूछा नहीं इन्फिनिटी स्क्वायर क्या होता है? नहीं वो बताया नहीं. गधा समझते हैं ना. एलन की चीज ये आपका y है. fx यहाँ पर क्या होता है बच्चों? देखिए बोर्ड पर ध्यान. whenever we need to find range, first of all we need to take fx as y. complete fx आपका ये है, यही आपका क्रिएट हो गया. that means y is now between 2 to infinity. that means y belongs to closed interval to open infinity. so this is your range. this is your range. मॉडुलस में आपको सॉल्विंग नहीं करनी है. इन केस ऑफ मॉडुलस फंक्शन आप मॉडुलस से शुरू करके ये आपको फॉर्म करना है ऐड सब्ट्रैक्ट करके. तो इसमें बस इतना ही है. नहीं, जो भी प्लस है उसको आप एग्जैक्टली हाँ वही करना है. अगर मैं इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट लेती हूँ सिमिलर वे में, सेकेंड पार्ट fx इज इक्वल्स टू 3 mod x minus 1 minus 5. ये आ गया, ये आ गया. डोमेन तो ऑल टाइम रियल नंबर, डोमेन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आंख बंद करके रियल नंबर है. ठीक, रैशनल में प्रॉब्लम आती है जहाँ डिनोमिनेटर 0 होता है, तो हम उस हिसाब से उसको मैनेज करते हैं. रेंज अगेन फर्स्ट आई कीप दिस एज y. रेंज के लिए लेट y इज इक्वल्स टू 3 times mod x minus 1 minus 5, right? Start with the modulus one. Modulus value is always more than or equal to 0 but less than infinity. Now I need to create 3 times this. So 3 से multiply करेंगे, 3 से multiply करेंगे, it is 0 only. 0 into 3 is 0. अब भी नहीं, infinity. Subtract minus 5. Subtract minus 5. Subtract minus 5. नहीं हो गया, आ गया. क्यों करना है? आ गया ये. क्या हो रहा है? 5 में इन्फिनिटी में से -5 जाएगा, इन्फिनिटी रहेगा. इन्फिनिटी एक अनडिफाइंड वैल्यू है, उसमें से आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी ऐड करेंगे, दैट विल रिमेन इन्फिनिटी. एक समुद्र है ना, उसमें से एक गिलास पानी निकालेंगे, वो समुद्र ही रहेगा. सब ओनली इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पर 0 मिलेगा आपको. तो बहुत सारे लोग हैं. ठीक है. सारा समुद्र का पानी निकाल दिया. सो दिस इज नथिंग बट योर y. This is nothing but your y. So y आ गया आपके पास. This is the range of y. Y belongs to -5 to infinity. तो वहाँ पे कुछ भी मेंटेन है, मेरा कुछ भी हो रहा हो कर देंगे. -5 बेसिकली ये क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन है. इनइक्वालिटीज में फिर से आएगी सेम चीज, फिर से इनइक्वालिटी चैप्टर के अंदर, वहां आपको और डिटेल में डिवाइड, उसमें रेंज है, वहां पर आपको रेंज निकालनी होगी सिर्फ इनइक्वालिटीज में. अब इनइक्वालिटीज है ना ये, तो अभी मैं यहाँ पर डिवाइड नेगेटिव नहीं ले रही हूँ. ठीक है, हाँ अभी बात करेंगे, तेरे को मैं देख रही हूँ. ठीक है, ये सहान क्लियर? यस मैम. तो मैम बेसिकली इसमें नहीं. करना है ना, हाँ ये जो भी मॉड हो उसको उसके साथ हो रहा हो एग्जैक्टली. उसमें करते हैं.
इस वाले क्वेश्चन के अंदर इस चैप्टर में मॉडुलस वाले जो फंक्शन आपको मिलेंगे वो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं मिलने वाला है, वो सिंपल मिलेगा। इन डिटेल में आप सेम क्वेश्चंस पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज में। इनइक्वालिटी आती है क्योंकि मॉड आएगा, लीनियर इनइक्वालिटी आएगी, ठीक है। सो अभी के लिए सिर्फ इतने क्वेश्चंस काफी आपको समझने के लिए, डोमेन और रेंज। एनसीईआरटी के अंदर ओनली सिंगल क्वेश्चन इज देयर विच इज आस्किंग फॉर डोमेन ओनली। अब डोमेन में तो रियल नंबर है, अब यहाँ पर मैं x+2 लिखूं या मॉड x-2 लिखूं, हार्डली मैटर्स। डोमेन इज ऑलवेज रियल नंबर, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्लियर? एक क्वेश्चन आप लोग कर दीजिए जल्दी से, थर्ड पार्ट। हाँ याद आया मैम, क्वेश्चन याद आ गया, वो मोड से रिलेटेड है fx इज इक्वल्स टू, पूछ लो कि जैसे मान लो हमारा एक फिट दिया मोड x+2, तो उसमें उसका ग्राफ बनाने को बोला है। बनाया था सर, लास्ट टाइम बनाया था आप। +2 हाँ मॉड, क्या फर्क पड़ता है? अगर आप ऐसे ले लो कि x+2 का बनाना है तो -2 से v बनेगा, v बनता है। 0 को कहते हैं, एक मिनट, चलिए करिए, इसका ग्राफ बना लेंगे, कोई बात नहीं, ग्राफ बनाना ना इसका। प्लस वाले से रिलेटेड कुछ तो डाउट था, मेरे को याद सीधा लिख दो ना फिर। कि वही सोच रहा था। सीधा मत लिखो सर, जो बताया वो लिखो, वरना फिर तुम्हें खुद ही याद नहीं होगा क्या रह गया था। मैम ये कुछ ऐसा है, Ma'am, is domain for mod is always real number. यस, डोमेन इज रियल नंबर। मैम ये कुछ ऐसा है, कैसा आ रहा है? ऐसा आ रहा है। ये बिल्कुल गलत आ रहा है। ओ गॉड, यस। डोमेन इज रियल नंबर्स, इसमें तो कुछ है ही नहीं। रेंज पर बात करते हैं। सर आप बताइए पीछे से, रेंज बताएं। नंबर्स किससे डिनोट करते क्यों? जीरो वही तो निकालते हैं। हाँ अच्छा, रेंज के लिए पहले वाई ले लेंगे, हाँ, बोलना चाहिए ना आपको। हो गया, आगे बोले। आगे आगे। जीरो जीरो मॉड एक्स मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इन्फिनिटी। ये यहां से रीड नहीं करते हैं, यहां से मॉड एक्स मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इन्फिनिटी। हंस, ये पागलों का कोई रीजन थोड़ी होता है हंसने का। हंस रहे हैं, मन कर रहा है, बोलो बोलो। वही रहेगा, बस ये आ जाएगा मोड मल्टीप्लाई 3 -5। हाँ तो आपने भी तो ये करा था। मैम ये तो मैंने भी करा था, हाँ तो आपने सही करा था, पर आपने तो शक्ल आपकी गलत वाली है। मैम सेम ही आंसर है मैम, हाँ सेम आंसर है। हाँ हाँ। अरे क्या y बिलोंग्स टू, आई होप सबको समझ आ गया। मोड के अंदर सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन डोमेन एंड रेंज, बातें नहीं, सिंपल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डोमेन एंड बेस्ड ऑन मॉडुलस फॉर फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडुलस के जो क्वेश्चंस हैं आपको लीनियर इनइक्वालिटीज में मिलेंगे। अभी हम यहाँ पर इसको यहीं पर एंड कर रहे हैं, मॉडुलस वाला। नाउ कम टू स्क्वायर रूट। हाँ आ गया क्वेश्चन यार। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन की जब हम बात करेंगे, बहुत ही सिंपल फंक्शन से शुरू करते हैं, मॉड रूट एक्स, ठीक है। ये कौन सा? ये नया है? नहीं नया नहीं, पुराना ही है, कोई भी फंक्शन का पढ़ा हमने। पढ़ रहे हैं, पहले ही पढ़ा था, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। एक्स डोमेन पर बात करेंगे तो रूट के अंदर वी कांट यूज नेगेटिव वैल्यूज। रूट में स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं जा सकती। तो डोमेन इज x मोर देन इक्वल टू 0 और वी से x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। डोमेन कभी भी नेगेटिव नहीं होता स्क्वायर रूट का, ठीक। फर्स्ट पॉइंट। रेंज, रेंज के लिए विल कंसिडर y एज fx, y is equals to root x. Again we need to convert x in terms of y. We need to convert x in terms of y.
x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर. अच्छा एक चीज यहाँ पर एक पॉइंट आपको नोट करना है, बोर्ड पर ध्यान सबका. Whenever we are taking y is equals to root x, that time we say y can never be zero. Negative. Y can never be negative because value of root, square root is always positive. मैम तो इज इक्वल टू नहीं होगा ना वहाँ पे, जीरो हो सकती है, मतलब जीरो पर जीरो हो जाएगी y की वैल्यू, नेगेटिव नहीं होगी. तो जो टेंस में उसमें ये समझ आया सबको? अरे x आ गया आपके पास in terms of y. So x is क्या करा हमने ये? y भी 0 और infinity के बीच में x is equals to y square. Yes. As x is x के बारे में x के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है? हम 0 लिखते थे. As x is more than equal to 0. As x is more than equal to 0. So that means y square is also more than equal to 0. Yeah. For what values of y? अब हमें चेक करना है. For what values of y? For what values of y their square is more than equal to 0? मैम इसमें x की वैल्यू होनी चाहिए थी ना बिगर देन 0. ऑल नेचुरल नंबर. बेटा ये तो सुन लीजिए 0 बस है. एक सेकेंड, अभी जस्ट बिगनिंग है. इट विल टेक टाइम. 2-3 क्वेश्चंस के बाद आप कंफर्टेबल हो जाएंगे. x की भी तो वैल्यू बिगर देन 0 होनी चाहिए. हाँ ये रही ना बेटा x की वैल्यू. माय बैड. x तो सबसे पहले हमने बताया डोमेन है. आई एम वेरी. सो y के लिए वी आर कन्वर्टिंग x इन टर्म्स ऑफ y. x इन टर्म्स ऑफ y आ गया. x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर. वी नो अबाउट x. x इज मोर देन इक्वल टू 0. As x is more than equal to 0, place the value of x over here. So y square is more than equal to 0. For each and every real number, y square is positive. 0 to infinity. Yes. Y belongs to minus infinity to infinity. As for all negative, positive, square is always positive. But it says y can be only positive value. Therefore, y belongs to 0 to infinity. Y belongs to 0 to infinity. Earlier we are getting y as minus infinity to infinity, but because of the condition, ये हमने यहाँ पर दी थी, because of the condition we are saying that y can take only positive values. Yes, is this clear? और questions करते हैं, clear हो जाएगा अच्छे से. Clear? Next question. कोई नहीं लाएगा, चुप करो, कुछ नहीं लाना सर, आप शांति से पढ़ाई करें. पानी चाहिए क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन. एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर द रूट x माइनस 2. दिस इज द क्वेश्चन. डोमेन एंड रेंज. आप बताएं आदित्य, डोमेन क्या हो सकता है? द वैल्यू अंडर द रूट कैन नेवर बी नेगेटिव. 0 और 0 और bigger than 0. 0 और Bigger than 0. 2 नहीं हो सकता ना. 2 हो सकता है, 0 हो सकती है. बिगर देन 2 0 हो जाएगा. 2 क्यों नहीं हो सकता? 0 हो सकता है. स्क्वायर रूट 0 इज 0. व्हाट यार? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड. 2 से बिगर होनी चाहिए. दिस वैल्यू मस्ट बी ईदर 0 और बिगर देन 0. मैं भी तो वही बोल रहा हूँ. कंप्लीट वैल्यू. हाँ वही. आप x बोल रहे थे. सो x मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू 2. x बिलोंग्स टू 2 to infinity. Is that fine? ये लिखते हैं r minus 2. r except 2. That means you are taking all negative values as well. रैशनल नंबर्स का क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या होगा? Integers नहीं, हम सारे रियल इंटीजर्स नहीं ले रहे हैं. Why you are taking integers? Real नेचुरल नंबर्स. किसमें? आप लीजिए हाफ फ्रैक्शन कुछ भी पुट कीजिए. आप इसमें पुट करो 7/2 चलेगा. आ रहा है ना पॉजिटिव रूट के अंदर.
सिर्फ नेचुरल पर क्यों रिस्ट्रिक्ट हो, रियल नंबर्स पे बात करेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन हो रहे हैं। अब हम बड़ा सोचते हैं, छोटी सोच नहीं रखते हैं। रेंज के लिए लेट y इज इक्वल्स टू अंडर y इज इक्वल्स टू fx. Whenever we are writing y is equals to root x minus 2, at the same time we'll write y should be only positive. At the same time we'll write a condition over y is always positive. Because later maybe we'll get values in negative part, so उसको आपको positive करना पड़ेगा. Okay, so यहाँ पर again we need to convert x in terms of y square, squaring both side. X can be real. X is equals to y square plus 2. Y can be As x is more than equal to 2. यहाँ से शुरू करते हैं, inequality introduce करना होता है. As x is more than equal to 2, therefore this value should also be more than equal to 2. 2 minus 2 0. So again we are getting y belongs to minus infinity to infinity, as for each and every value of negative or positive, square is always positive. So but we always write but y, as said earlier, is positive only, therefore y belongs to 0 to infinity. हाँ भाई. बेटा आप सुन लीजिए ना, यहाँ पर कुछ समझा रही हूं मैं आप ही के लिए. Squaring both side. First of all, we need to convert x in terms of y every time. Here we have an expression x in terms of y. Then we move to x. Again move to x. As x is more than equal to 2, that means this expression is also more than equal to 2. 2 will go to the right. I can take value. Yes, beta. पॉज हो गया. Yeah. Wait a minute. ये सबको क्लियर है?
एक नेट मैम ये x माइनस 2 हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है हाँ और वो y स्क्वायर के इक्वल है, हाँ तो हम सीधे से y हाँ स्क्वायर लिख सकते हैं पक्का हाँ, तो हाँ। इतना वो प्रोसेस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चे वरना कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अभी इसमें हो रहा है ऐसा, आगे नहीं होगा। बाय चांस इस क्वेश्चन में आप इसको डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं बट नॉट इन अदर्स। हाँ जी, मैम वो क्या लिखा हुआ है एंड में y बिलोंग्स टू 0 to infinity. Y belongs to minus infinity to infinity, but y is more than equals to 0, therefore y belongs to close interval 0 to infinity. हरीश ये क्लियर है आपको? Yes, ma'am, clear, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, fx is equals to under the root x 16 minus x square. minus x square. So this is a question in which we are getting a quadratic under a root. Quadratic under a root. In the past two questions, we were having linear under the root. Linear under the root. So in case of quadratic under the root, the process is bit different. We need to go for तो इसमें रेंज में वो x square is equal to yes. 30. So it's a case where the quadratic is there under the root. So for domain, we will say the value under the root, which is quadratic over here, is more than equals to 0. And now we need to factorize this. We need to factorize this 4 minus x, 4 plus x. We are using the identity a square minus b square, which is a minus b, a plus b. So as this is 4 square, so we are writing 4 minus x, 4 plus x. In case of factors in inequality, we need to go with wave method. We need to use wave method. How the wave method work? समझेंगे बोर्ड पर ध्यान. First of all, we need to find the change points, the points at which the factors are 0. Basically the zeros of this quadratic. So there are two zeros, minus 4 and 4. We need to check for, this is your real number line for x. This is your number line for x. We are looking for those values of x for which this or this is positive. So now take a value in this interval, then in this interval, then in this interval. In case of quadratic inequalities, we need to make a factors and then find the zeros. Zeros means at which the factor is 0. At 4, at minus 4. Now we have to find in which interval we are getting 3 intervals. In which interval we are getting this expression as positive. So consider interval one by one. First this. Take any negative value less than minus 4. Any negative value less than minus 4. Minus 5. Put over here minus 5. So 16 minus 25 will be negative. So write negative. Then take any value in between this interval 0, 0, positive. Then after this interval, negative. So we are looking for the interval at which this value is positive. So this is the interval minus 4 to 4 at which this particular value is positive. So therefore we say x belongs, this is a complete x real number line and we were looking for the values of x at which this interval is positive. So this interval, this expression is positive as minus 4 to 4. We are including both minus 4 as well as 4 because this value can be 0 as well. At the end points, this value is getting 0. Okay. So your final answer for domain is this interval. I hope it's clear to all of you. Yes.
come to range. It will take time. ऐसे एकदम से समझ नहीं आएगा. We need to like practice 2-3 questions. Then after you will able to complete the question yourself. y square is equal to x, take y square is equal to x anywhere. करेंगे कर रहे हैं. Let y is equals to range के लिए हमेशा y ले रहे हैं under the root 16 minus x square. At the same time we need to write y can be only the positive real number. At the same time we need to write हमेशा, because later we may get values in negative. आपको वो इग्नोर, नेगेटिव वैल्यूज को यू नीड टू इग्नोर. ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड. y square is equal to 16 minus x square. वही सेम सिचुएशन आ गई पर नहीं नहीं, x लिखना है, x in terms of y. रूट 16 माइनस वही हो गया. x is this, x is this. y is same. Again we are, yes, again we are in the same situation. We are getting a function within a root, so the value within a root must be positive real number, 0 to infinity. Again make branches, make factors. 4 plus y, again find out the points at which these two factors are 0. Minus 4 and 4, find the value, again same process, positive, negative. So y belongs to, here we have y number line, y real number line. Y belongs to minus 4 to 4. But as we said earlier, y can never be negative. So we are going to capture only the positive values 0 to 4. We are going to capture only positive values from the negative part. Yes, now tell me. Hanji, doubt. Let me first finish, then ask your doubt. Sorry. Yes. Now go. I have a doubt. बोलिए. Why can't I go to water? नेक्स्ट क्वेश्चन सारे पहले ही देख रहे हैं. कर लीजिए, बाकी लोग इसको स्टार्ट करेंगे. यस. सॉरी. भूल लगी है क्या? पढ़ ले यार. मैंने क्या बोला?
y is greater than equal to एक सेकेंड, फिर से समझ लेते हैं. सबसे पहले स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, तब ये प्रोसेस है. पहली बात, क्वाड्रेटिक नहीं था, लीनियर था पिछला प्रोसेस. क्वाड्रेटिक, whenever we have quadratic will make factors of quadratic. quadratic के factors हो सकते हैं, middle term splitting है, बहुत सारे process हैं. Whatever factors we are getting, we need to find zeros at which the factors are 0. ये दोनों आ गए. Then you need to get the values of x at which the interval or the given quadratic is positive. So वो हमने substitution से लिया, any value from this interval, then any value from this interval likewise. ये interval final हो गया. Whenever we comes to y, y is the result. Y is the result. So result of square root can never be negative, first of all. So that means whenever we keep y as this, we'll write at the same time y can never be negative or y is more than equal to 0. Now ask your question. अगर हम इधर y को माइनस नहीं पूछने दो, इनको पता ही नहीं पूछना क्या है. ओ एक्स स्क्वायर है. So पता ही नहीं उनको क्या पूछना है. ये पता है, ये कह रहा था ये रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, y की इक्वल y को -1 रख देते हैं. छोड़ दे तुम. स्क्वायरिंग बोथ साइड करके स्क्वायरिंग बोथ साइड करके x आ गया. एंड अगेन द सेम प्रोसेस, वी आर गेटिंग अ स्क्वायर रूट फंक्शन. फिर से सेम फॉलो किया, बट आफ्टर गेटिंग द वैल्यू, after getting the interval for y, I'll say y can never be negative or always positive. So the value of y will be the positive portion of this interval, which is 0 to 4. Right? Clear है सबको? This question क्या आंसर है? डोमेन बता दूं. बताइए, बिल्कुल बताइए. x belongs to -5 close. अच्छा, -5 और range 0. This type of question always have answer like this. ठीक है, हमेशा. Ma'am, what if it is 26 like that? 26, Yeah. like if you have under the root 26 minus x square. Okay, whenever, like if you have a square root with non perfect square values, हाँ ऐसा हो सकता है. say 3 minus x square, 5 minus x square, non perfect square number. say this is the next question. ले लेते हैं इसको. next question में find domain and range. so for domain, मैम एक बार हम अटेम्प्ट करें. बिल्कुल बोर्ड पर ना देखें. अरे अच्छी फिर आप नहीं, वो दूसरा था. that was 25 minus x square. this is another question. so I'll write root 3 minus x, root 3 plus x. yes Harish, is this clear to you? Yes, ma'am. Clear, ma'am. हाँ, because if I want to factorize this, I need to write in this way: a square minus b square by keeping 3 under the root. Okay, root 3 minus x. 3 minus 6 was greater than or equal to 0 or greater than. फिर से बोलो बेटा. 3 minus 6 was greater than or equal to 0 or greater than. Greater than or greater than equal to 0. And if I place a question in this way, बोर्ड पर ध्यान. now this denominator can never be 0. rational function है, denominator can never be 0. this time I need to write this as strictly more than 0. strictly more than 0. ठीक है भाई, इसको हम नेगेटिव नहीं ले सकते. so the values at which these are 0 minus root 3, root 3. तो उसका भी सीधा ही आंसर है. आपको क्या मालूम? मैम ये 1 बाय में है. हाँ, ये 1 बाय में कर दिया. 1 बाय में कर दिया इसको. नहीं, 1 बाय में कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेना. सो नाउ वी नीड टू कीप दिस एज स्ट्रिक्टली 0. 0 नहीं ले सकते अब. ठीक है, खड़े हो जाओ बेटा. सो बताइए आंसर. खड़े हो जाओ, और गलत पर खड़े रहोगे अगली 2 क्लासेस तक. खड़े हो जाओ, सर पे ना लगे. इधर कैमरे से साइड हो जाओ. कैमरे के सामने आ गए हो. बोलो. कौन है रखा? 1 मिनट आंसर बोलने दो. कल तक बोलोगे? नींद आ रही है ना तुम्हें? 1 मिनट फिर से बोलो. सब सुनना, बाद में ये चेंज होगा.
क्या हो गया? Next करो, next. जल्दी जल्दी। minus root 3 हाँ आ गया खड़ा रहेगा, root 3 खड़ा रहेगा आज के बाद से अगली 2 क्लासेस तक। अभी से तेरी पनिशमेंट शुरू है। क्यों ये क्यों नहीं होगा? बोल नहीं रहा ना, होगा तो देख के मत बोल, उसने कुछ लिखा ही नहीं सामने मत आ कैमरे में। minus 3 The door is open. minus root 3 नहीं है 0 उसको खुद को नहीं आता. प्लीज बोलने दीजिए, बोलो। 0 नहीं बता दूँ मैं। बच गया तो नाम मैं जान भी नहीं किया. ठीक है, खड़े रहो, खड़े रहो और यॉर्निंग करते रहो खूब जोर जोर से, इतना मुंह फाड़ो। क्या यार माइनस रूट 3 रूट 3 मैम पहले वही तो बोला था मैम वही तो आपने बोला था इसने. देखा। बोल, अभी पूरा नहीं हुआ। यही बोला था बस इतना ही है इंटरवल बनाओ, वो क्लोज हाँ सही तो है। क्लोज क्लोज। नहीं नहीं ओपन क्लोज नहीं नहीं ओपन 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 डिसाइड हो चुका है बेटा, तुम खड़े रहोगे, डिसाइड हो चुका है। ओपन क्लोज मत करो, क्लोज ही रहेगा. खोल दिया है ओपन है ये। हैं? इस बार 0 नहीं हो सकती वैल्यू। मैम मैं कंफ्यूज हो गया चुप रहो, अब मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा, तुम्हारा टाइम ओवर हो गया अब। -3 पर 0 है, माइनस रूट 3 पर 0 है, रूट 3 पर भी 0 है। दिस टाइम वी आर नॉट सपोज टू टेक वैल्यू एट 0, सो द इंटरवल शुड बी ओपन। अच्छा. मैम ये इस वाले में मैंने कर दी. इस अगर ये 1 बाय नहीं होता तो ये तो क्लोज होता. होता ना. मैंने सही करा ऊपर से. बहुत तेज से समझ आ रहा है भाई. मैम उनको होमवर्क ना करने के लिए एक चांस कब आएगा बताओ? माइनस रूट 3 के बीच में 0 तो आता है. 0 आएगा। ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए बेटा, अच्छा. वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये वैल्यू आपकी मोर देन 0 है, स्ट्रिक्टली मोर देन 0। अगली 2 क्लासेस तक खड़े रहोगे। आज तो 15 मिनट है, लेकिन अब उनको कोई बात होमवर्क नहीं। ना करने के लिए लास्ट स्टार्ट करना था किसको? रेंज रेंज मैथ से रेंज नहीं बताओ, तुम्हें कुछ नहीं पता, चुप हो जाओ, टाइम वेस्ट करते हो। स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम सीधा नहीं लिख सकते इसका रेंज वैसे नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, बट देख लेते हैं। नहीं सीधा नहीं लिख सकते हम ऐसे इतना बड़ा दिखाने के लिए 0 आपको पता था आंसर? देख के जैसे आपने बताया उस हिसाब से 0 ऐसे बेटा वर्किंग के मार्क्स होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। y square is equals to 1 minus एक सेकंड रुक जाओ, क्योंकि मे बी दिस इज नॉट अ पार्ट। अगर क्वाड्रेटिक बनेगा तो सिलेबस में नहीं है। क्वाड्रेटिक कहाँ से? हम इसमें वही क्रिटिकल पॉइंट्स बना के कर सकते हैं. ये आपने रूट उधर क्यों करा? स्क्वायरिंग करके रूट कर हटा, रूट वाला पार्ट कर दिया। स्क्वायरिंग करिए पहले, स्क्वायरिंग हुई है, ठीक है, ठीक है. फिर आपका ये वैल्यू यहाँ गई है। ठीक है, ठीक है. Quadratic. होल रूट करो एक्स फिर से इनइक्वालिटी आएगा। ये वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है, समझ आ रहा है तो ठीक है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, ठीक है, सुन लो। लेकिन तो x कर सकते हैं, कर सकते हैं। बिलोंगिंग हम कर देंगे. अभी दिस बिलोंग्स यहाँ पर y इज पॉजिटिव लिखना भूल गई मैं, और अब y 0 नहीं हो सकता है। अगर आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर है ना ये, तो y 0 नहीं हो सकता है। नाउ द वैल्यू अंडर द रूट इज पॉजिटिव 3y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर। बोर्ड पर ध्यान सबका। मोर देन इक्वल टू 0, बिलोंगिंग नहीं होगा. ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मोर देन इक्वल टू के होगा, मोर देन नहीं होगा। दिस वैल्यू कंप्लीट वैल्यू कैन बी 0, कंप्लीट वैल्यू कैन बी 0। क्यों? हाँ. रूट के अंदर की कंप्लीट वैल्यू 0 हो सकती है। ये पूरी वैल्यू 0 रूट में नहीं थी, सिर्फ डिनोमिनेटर में रूट था, इसलिए हमने वो कंसिडर किया था। ओके, सो नाउ अगेन वी नीड टू फॉर्म फैक्टर। ये कहाँ पर 0 है? 1 बाय,
इसके फैक्टर बनाओ 1/3 पे रूट 3y माइनस 1 रूट 3y प्लस 1 वी नीड, बोर्ड पर ध्यान 1 मिनट के लिए सबका, वी नीड दिस वैल्यू एज मोर देन इक्वल टू 0. Y square is always positive, whatever y is, y square is always positive. That means the whole expression would be positive only on the basis of numerator. आपको ये वैल्यू पॉजिटिव रखनी है. न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी नेगेटिव. दैट मीन्स फॉर दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन टू बी पॉजिटिव न्यूमरेटर मस्ट बी पॉजिटिव. ये समझ आ रहा है सबको? क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है वाई स्क्वायर 0 में चला गया. ऐसा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि वाई स्क्वायर 0 में जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है. वी आर सेइंग एज द कंप्लीट न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव and denominator is always positive for all values of y. Now the whole thing depends on only on numerator. Numerator should be positive. Numerator should be positive. Right? Clear सबको? अब branches minus 1/√3 1/√3 पुट कर लीजिए 0 पर. ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव. अच्छा, आप कई बार बच्चे बोलते हैं मैम कैसे, इतनी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है, कैसे पता चलेगा क्या है? माइनस 1/√3 से 1/√3 के बीच में 0 है. इस इंटरवल को पिक करो जिसमें 0 आता है. पिक दिस इंटरवल, प्लेस वैल्यू 0 ओवर हेयर, इसके अंदर न्यूमरेटर वाले पार्ट में. नेगेटिव आ रहा है, 3 इंटू 0 माइनस 1 नेगेटिव आ रहा है. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर y 0 डलेगी तो नीचे भी 0 डल जाएगी. हम अभी ऊपर वाले को देख रहे हैं बेटा, सिर्फ इसको देख रहे हैं. तो वी आर नॉट लुकिंग डिनोमिनेटर एनी मोर. डिनोमिनेटर हम छोड़ चुके हैं. वी आर सेइंग डिनोमिनेटर फॉर एनी डिनोमिनेट वैल्यू ऑफ y. डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव है. नाउ एज दिस इज अ रैशनल फंक्शन, होल थिंग इज बेस्ड ऑन न्यूमरेटर ओनली, क्योंकि वो पॉजिटिव तभी होगा जब न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा. न्यूमरेटर पॉजिटिव कहाँ है? वी आर लुकिंग फॉर दोज इंटरवल. तो अभी y को मत देखो आप. यहां पर मैंने इंटरवल बनाए 1/√3 इज कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू लाइक, तो उसमें आप नहीं समझ पाओगे कैसे वैल्यू हम निकालें. तो टेक द इंटरवल जिसमें 0 आ रहा है. 0 इज कमिंग इन दिस इंटरवल, पुट 0 इन द एक्सप्रेशन. ये वाले में पुट करेंगे तो क्या आएगा? -1 नेगेटिव आ रहा है. एंड एज दिस इज अ वेव मेथड, इंटरवल्स ऑलवेज बिहेव ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट पोजेस, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लाइकवाइज. सो अगर ये नेगेटिव है, दीज मस्ट बी पॉजिटिव. अगर ये पॉजिटिव होता है, दीज मस्ट बी नेगेटिव. ऐसे ही होता है. ठीक है, उसमें आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है. सो दिस टाइम माय आंसर, माय वैल्यू बिलोंग्स टू -1/√3 but y is positive as we considered in the beginning. y is more than 0, therefore y belongs to open 0 to 1/√3. This portion is not a part of your syllabus, but if you want you can attempt. Okay? समझ आ रहा है तो कर लो, नहीं आ रहा तो छोड़ दो, बट मैं बोलूंगी कर लो.